चलिए, स्वागत है आप सभी का सीए फाइनल न्यू सिलेबस पेपर 6 केस स्टडी के इस महा एपिसोड में। महा एपिसोड क्यों सर? क्योंकि हम लास्ट 2 केस स्टडी इसी वीडियो में सॉल्व करके क्लोज कर देंगे, तो हमारी 8 केस स्टडीज खत्म हो जाएगी। एंड अभी के लिए हम आईबीएस से ब्रेक ले सकते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने 8 के ऊपर केस स्टडीज पब्लिश नहीं की। अगर काम अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर दो, आपको पता है सब कुछ, है ना। एंड इन 8 वीडियोस के दम पे आप लोगों को बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना है। आगे भी मैं केस स्टडीज प्लान कर रहा हूं बेस्ड ऑन पेपर 6F ऑफ ओल्ड सिलेबस, है ना। उसमें बहुत सारी केस स्टडीज है जिसमें रेलेवेंट केस स्टडीज को मैं या रेलेवेंट पोर्शंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। एंड 8 केस स्टडीज के बाद हमारे अभी वी आर स्टिल क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स, तो कर दो यार, कर दो, क्या जाता है, कर दो, है ना। ओनली एंड ओनली सपोर्ट कैन मोटिवेट पीपल लाइक मी, जो ये सब एज अ पैशन करता है, नॉट एज अ प्रोफेशन, नॉट फॉर अर्निंग मनी बट टू अर्न पीपल, है ना। आ जाइए, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, सबसे पहले रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ेंगे। आ जाइए सर, एमसीक्यूज। An assessee carrying on business of growing and manufacturing tea is allowed a deduction under income tax upon fulfillment of certain conditions like depositing amount in a deposit account opened in accordance with the scheme framed by tea board. Deposits made in accordance with schemes framed by other boards for agricultural commodities also qualify for similar deduction. Which of the following schemes qualify in this regard? ठीक है, 33AB DT PGBP का क्वेश्चन है। Select the correct option on the basis of the two statements. Payment of 20% profit to Mrs. Daya is application of income. Payment to alimony, payment of alimony, by Gautam to his ex-wife, is diversion of income. मतलब ये दो नए वर्ड्स हम सुनने को मिल रहे हैं, आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। What would be the GST? GST तो मतलब इंस्टीट्यूट का वो सोन पापड़ी जैसा आ ही जाता है। What would be the GST treatment of stock lying with Mr. Shakti Puri? ठीक है। Basuri Private Limited is also engaged in sending raw tea leaves to job workers and selling processed tea after job work is performed. Which of the following forms or returns is to be filed by Basuri Private Limited on GST portal in this respect? वापस GST का MCQ. With respect to decision taken at the 4th board meeting, the contention of Director Prabhu Deva is company law का question है। Descriptive. Analyze whether the activities narrated by CA Puru to Mrs. Basuri Devi with respect to Kheti Badi Limited fall in the scope of Ind AS 41 with proper reasoning. खेतीबाड़ी करेंगे केस स्टडी 7 में हम लोग। You are requested to state the income tax implication of withdrawal from deposit account during the financial year 2023-24 relevant to assessment year 24-25. Income tax implication बताना है कुछ transactions के लिए। What specific factors of online shopping would be considered by CA Puru in formulating the audit strategy of the company in the above case, keeping in mind the concern raised by Mr. Prabhudev? ये था रिक्वायर्ड पार्ट। Ind AS 41, फिर 33AB, AB, हाँ AB है नहीं AB, ओके। मतलब खेतीबाड़ी से रिलेटेड केस स्टडी है। केस स्टडी 7 थला फॉर अ रीजन, ठीक है। Mr. Murli Lal and Mr. Basuri Devi have been residing in Manpur village since their marriage. They have been actively involved in agriculture and dairy farming business. दोनों भी इसी में है, बोलो थला फॉर अ रीजन। सर क्या हो गया है, सॉरी, सीरियस, ठीक है। अभी नो मस्ती, ठीक है। In their village and sell their output in the nearby villages as well. They have earned so much accolades for business they run and they have accrued much wealth. There have been many instances where the couple felt that they should move to a metro town to explore more, but without any knowledge of business world and regulatory compliances, they felt handicapped, ठीक है। Their children are also settled abroad. One fine day, they were visited by CA Puru, a fast friend of their son who usually comes down to their village quite often to know about well-being of his friend's parents from time to time. कितना अच्छा बच्चा है, देखो, दोस्त के पेरेंट्स का हालचाल पूछना है, CA है, ठीक है। Mrs. Basuri Devi discusses with him about agricultural operations she manages with the help of her team in the village and scale of operations they maintain. Puru tells them about how agricultural activities are maintained and operated in metro towns such as Mumbai, where he lives and practices his profession. मतलब CA Puru is a practicing chartered accountant in Mumbai. During his discussion, he tells her that one of his clients, MS Kheti Badi Limited, a listed company, is involved in agriculture and allied operations by procuring material from nearby areas. This company is also involved in various other types of animal husbandry operations and works on the same scale as Mrs. Basuri Devi and Mr. Murtilal work in their village.
On getting curious, Mrs. Basuri Devi asks him about the form and style in which खेती बाड़ी लिमिटेड वर्क्स इन द सिटी. गांव के लोग ये पूछ रहे हैं सीए से कि तुम्हारे मुंबई में खेती बाड़ी का बिजनेस कैसे होता है. Puru tells that unlike villages in corporate world, large businesses have to follow certain accounting standards while maintaining books and balances of their business. Standards related to agriculture set out accounting for agricultural activity, the management of the transformation of biological assets into agricultural produce. The standards generally require biological assets to be measured at fair value less cost to sell. Ind AS 41. He tells about the following activities carried out by खेती बाड़ी लिमिटेड. यहां तक शोर नॉइस. ठीक है, नॉइस आइडेंटिफाई कर लिया हमने. रेलेवेंट कितना है ये, थोड़ा स्क्रीन ठीक है. ओके. मैनेजिंग एनिमल रिलेटेड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक जू. ये खेती बाड़ी लिमिटेड जो मुंबई में है उसके बारे में सीए गांव में किसी को बता रहा है, ऐसी स्टोरी है. ठीक है, खेती बाड़ी लिमिटेड करता क्या है? मैनेजिंग एनिमल रिलेटेड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, फिशिंग इन द ओशन, फिश फार्मिंग, डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज सेल्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस फॉर रिसर्च, growing of plants to be used in production of drugs. Hearing about this, Mrs. Basuri Devi persuades Mr. Murtilal to set up a company in the town under Puru's guidance to expand their business outside the village as well. मतलब मैडम को ये बिजनेस मॉडल पसंद आया और वो अपने पति को बोल रही है कि चलो चलो हम शहर जाते हैं. ठीक है. सीए पुरु अश्योर्स मिस्टर मूर्तिलाल. पुरु क्लाइंट ढूंढने गया था गांव में. ये देखो कितना स्मार्ट है वो. assures Mr. Murtilal about on all his queries and tells him that he and his team will help them at every step in setting up their company. मतलब सीए पुरु उन दोनों को ये बोलता है कि आप मुंबई आ जाओ, आपकी कंपनी हम बना देंगे. Soon the couple, with the help of CA Puru, set up and start operating their company in Mumbai under the name and style of MS Basuri Private Limited, which ventured into business of agricultural operations with Murtilal, Basuri Devi and Mr. Prabhu Deva as directors of the company. मतलब एक बंदे को और लाए, 3 डायरेक्टर से कंपनी खोल ली. Mr. Prabhu Deva is appointed as managing director as the former directors are quite busy in the business already set up at Manpur. गांव में ऑलरेडी बिजनेस है तो एक तीसरे डायरेक्टर को लाए. The company got registered under GST solely in the state of Maharashtra. मतलब GST का एक ही रजिस्ट्रेशन है, शांति है. During the year, the company falls short of funds and they decide to borrow funds from the market. The board of directors of the company resolved to borrow a sum of 20 crore from Nationalized Bank during a board meeting held on 15/1/2024. Mr. Prabhu Deva, who opposes the said borrowing as it is not in the interest of the company, has raised in an issue that the said borrowing is outside the borrowing powers of the board, putting forward the following data. मतलब प्रभुदेवा ऐसा बोल रहा है कि आपके पास पावर नहीं है ज्यादा बोरोइंग करने का बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा. वो डेटा क्या है, पावर क्या है, रेस्ट्रिक्शन क्या है, हम पढ़ेंगे. After the meeting, since Mr. Murtilal was in Mumbai, he wanted to discuss all the tax matters with CA Puru and sits with him in the office for the same. ठीक है. With business expansion, Mr. Murtilal also purchased a controlling stake in Kheti Badi Limited and now is a director of the said company. He says he wants Puru to tell him briefly about the performance of this company in the tea market as well. Puru tells him that for the previous year ended 31st March 23, Kheti Badi Limited's composite business profit before allowing deduction relating to growing and manufacturing of tea is INR 50 lakhs. On 1/9/2023, it deposited a sum 1/9/2023. It deposited a sum 1/9/2023. Date पे ध्यान देना. Deposited a sum of 10 lakh in the tea development account. During previous year 21-22, the said company incurred business loss of 15 lakh, which has to be carried forward. On 21st January 2024, it withdrew 10 lakh from the deposit account, which were utilized as follows: 6 lakh for non-depreciable asset as per scheme, 3 lakh for purchase of machinery to be installed in office premises, 1 lakh was spent for purposes of scheme on डेट पे ध्यान देना 5th April 2024. मतलब अब जो मूर्तिलाल भाई साहब है उसका बिजनेस बहुत बढ़ गया, वो खेती बाड़ी लिमिटेड के डायरेक्टर बन गए और उनको अब खेती बाड़ी लिमिटेड की पंचायत है कि इस कंपनी ने बिजनेस में क्या किया है, और जो सीए भाई साहब है उन्होंने इतना डिटेल दिया है. ठीक है, स्टोरी कनेक्टेड रहना स्टोरी से. ठीक है. Mr. Murtilal wants to know about the income of the company for the year and the tax liabilities, if any, thereon, and about which CA Puru gives him approximate idea at that time. It's ठीक है. Mr. Prabhudeva had informed CA Puru about 2 peculiar transactions related to GST which he wanted to discuss in the presence of Mr. Murtilal.
related to MS Bansuri Private Limited. In one of the cases, they send raw tea leaves to their registered job worker under GST, Mr. Sharma, in Mangalore, Karnataka, and further, the processed flavored tea, which is further delivered to wholesalers in Telangana. मुंबई से मैंगलोर गया, मैंगलोर से तेलंगाना गया, ठीक है, from the job worker's place in Mangalore itself, with invoice and e-way bill being issued by the company's department from the Mumbai office. Further, he asks him about the treatment of another transaction. दो transaction बोले थे, एक हो गया job worker का, दूसरा transaction है. They had sent a special lot of tea rosa to another job worker, Mr. Shakti Puri in Ratlam, for making flavored tea as per the directions given. Further, due to a decline in market of the flavored tea, they sent fresh, normal, unprocessed raw tea with new instructions to the job worker to hold the earlier consignment in stock till a buyer is found. मैंने कुछ स्टॉक भेजा था, मैंने कुछ टी भेजी थी, ठीक है, उसकी डिमांड कम हो गई, मैंने बोला उसको अभी साइड में रख, अपने स्टॉक में रख, मैं नई टी भेजता हूं तुझे. इस ट्रीटमेंट, इस ट्रांजैक्शन का जीएसटी ट्रीटमेंट हमें बताना है. द न्यू स्टॉक इज इजीली सोल्ड बट द ओल्ड स्टॉक रिमेन इन गो डाउन ऑफ द जॉब वर्कर ओवर अ ईयर. CA Puru guides him properly about the tax treatment of these two transactions under GST. तो एक GST का है, एक पैराग्राफ उन लोगों ने DT का दे दिया. तीसरा देखते हैं. Mr. Murtilal is happy that their business is gone online as well and now they have selling their products through various e-commerce platforms. Mr. Prabhudeva shows his concern over the online selling part and wants CA Puru to keep a check on the working of the same during his audit. मतलब हमने बहुत सारा बिजनेस ऑनलाइन किया है, ठीक है, तो सीए को बोल रहे कि तू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का टेस्टिंग बराबर करना अपने ऑडिट में. CA Puru assures him that his audit strategy would majorly be based on the fact that a good part of the company's business has gone online. ठीक है. In the evening, मतलब पूरा खत्म हो गया, अब इवनिंग, शाम हो गई. Mr. Murtilal takes Puru with him to meet his old friend Mr. Babulal who resides in Mumbai with his family. अब नया स्टोरी शुरू हो गया. Mr. Babulal had requested him for a meeting with Puru so he could discuss with the latter certain tax related issues of his family and hire his services for the tax related work. Mr. Babulal tells Puru that his son Gautam is liable to pay 10,000 per month to Barkha, his wife, as alimony. Barkha नाम ही पनौती है, ठीक है, जाने दो. Gautam, being an employee of PQR Private Limited, has instructed his company's HR department to pay 10,000 per month out of his salary. इस पे मैंने एम्फेसिस क्यों किया बाद में समझेंगे. आउट ऑफ हिज सैलरी, दिमाग को थोड़ा, सॉरी, इस वर्ड को थोड़ा दिमाग में सेट करके रखना. टू हिज वाइफ डायरेक्टली एंड रेमिट द रिमेनिंग सैलरी टू हिज अकाउंट. मिस्टर बाबूलाल वांट्स टू नो द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ सच एलिमनी गिवन बाय गौतम इन हिज हैंड्स. गौतम के हैंड्स में एलिमनी का क्या ट्रीटमेंट होगा. मैं एलिमनी पे कर रहा हूं तो मेरे लिए टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा. Further, he tells CA Puru that he works under a partnership firm in which he and his other two sons, Mr. B and C, are partners. The partnership deed provides that after his death, Mr. B and C shall continue the business of the firm subject to condition that 20% of the profit of the firm shall be given to Mrs. Daya. Mr. Babulal wants, Daya matlab Babulal ki wife. Mr. Babulal wants to know the tax treatment of such receipt in the wife's hands after his death. Puru satisfies Mr. Babulal by solving all his queries and quotes his fees to handle the all tax related matters of the company. बहुत खिचड़ी वाली केस स्टडी थी. इनिशियली एग्रीकल्चर दे दिया, इंडेस दे दिया, बीच में DT GST दे दिया, फिर थोड़ा ऑडिट दे दिया और फिर ऐसा हार्ट ब्रेक भी दे दिया, ठीक है. तो बहुत अच्छी केस स्टडी है. 2 मिनट पॉज करके पूरी अच्छे से केस स्टडी पढ़ो. वी विल जंप टू द सोल्यूशन पार्ट, और सोल्यूशन पार्ट में मुंह धो के आना, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स डिस्कस होने वाले हैं, ठीक है. जाओ, चलिए सॉल्यूशंस डिस्कस कर ले फटाफट से. MCQ नंबर 1. An assessee carrying on business of growing and manufacturing tea is allowed a deduction under income tax law upon fulfillment of certain conditions like depositing amount in a deposit account opened in accordance with scheme formed by the tea board. Deposits made in accordance with schemes framed by other boards for agricultural commodities also qualify for similar deduction. Which of the following schemes qualify in this regard? अच्छा, 3 बोर्ड होते हैं, टी, कॉफी, रबर. टी, कॉफी, रबर. टी आ गया तो कॉफी एंड रबर आएगा, कॉफी एंड स्पाइसेस नहीं आएगा, रबर एंड स्पाइसेस नहीं आएगा, कॉफी एंड रबर आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है. टी, कॉफी, रबर, ध्यान देना, इसमें कुछ पढ़ाने का नहीं था. Select the correct option on the basis of the following two statements. Payment of 20% profit to Mrs. Daya is the application of income. Payment of alimony by Gautam to his ex-wife is diversion of income. ध्यान देना, 2 मार्क का MCQ है और इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना मुझे शोभा नहीं देगा, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं बिकॉज ये कहीं पे आया नहीं है अभी तक, ठीक है. ध्यान देना थोड़ा सा.
ध्यान दें, एक डिस्कशन आपके साथ मुझे करना है एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम का। कौन सा सर? एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या होता है? मुझे, मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है, मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है कि मुझे मेरी इनकम में से कुछ किसी को पे करना है, मुझे मेरी इनकम में से कुछ किसी को पे करना है। और डाइवर्जन ऑफ इनकम ये होता है कि मेरी इनकम पे किसी का हक है, मेरी इनकम पे किसी का हक है। द differentiating factor between application of income and diversion of income is one fact that the claimant, जिसका हक है मेरे ऊपर, that can claim the amount even before he lays the claim। मतलब सर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, ध्यान दें, एग्जांपल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया कि मैं लेक्चर्स में से जितने भी कमाऊं उसमें से मैं 20% आपको दे दूंगा, मैं लेक्चर्स में से जितने भी कमाऊं उसमें से 20% आपको दे दूंगा। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। लेकिन आपने ये बोल दिया, आपने ये बोल दिया किसको? मेरे बैंकर को कि ये इसके अकाउंट में जितने भी पैसे आए, इसके अकाउंट में जितने भी पैसे आए उसका 20% मुझे दे देना, उसका 20% मुझे दे देना। मैं मांगू नहीं तो भी दे देना, मैं मांगू नहीं तो भी दे देना। इवन बिफोर आई ले अ क्लेम, that 20% should be paid to me. I have a better title on that 20% than me. You have a better title on that 20% compared to me. तो उसको बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम। इनकम को डाइवर्ट कर दी, अप्लाई की, मतलब एप्लीकेशन। जैसे प्रॉफिट का एप्लीकेशन होता है डिविडेंड ट्रांसफर टू रिजर्व, वैसे इनकम का एप्लीकेशन क्या होता है? मैंने अपनी इनकम में से कुछ पे कर दिया। लेकिन डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या होता है? वो इनकम मेरे पास आई ही नहीं, किसी और के पास चली गई। सर ये हमें क्यों बताया? बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ इनकम में और डाइवर्जन ऑफ इनकम में टैक्सेबिलिटी का चेंज आ जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम में जो इनकम आ रही है उस पर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, फिर मैं अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन डाइवर्जन ऑफ इनकम में उस इनकम पे मुझे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, सीधा डिडक्ट हो जाएगी वापस। एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज दोनों की टैक्सेबिलिटी चेंज हो जाती है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम में वो इनकम पहले मेरे पास आएगी, मैं उस पर टैक्स भरूंगा, फिर मैं उस इनकम को अप्लाई करूंगा। डाइवर्जन ऑफ इनकम पे वो इनकम भले मेरे पास आ रही है बट मुझे उस पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, बिकॉज समवन एल्स हैज अ बेटर टाइटल ऑन दैट पोर्शन ऑफ इनकम ऑफ माइन। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, ये मैंने जो 1 या 2 मिनट जो बोला, इट इज अ रिजल्ट ऑफ 3 आवर्स रिसर्च। क्योंकि देखो आईसीआई के मटेरियल में ये 2 वर्ड्स मुझे नहीं मिले, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिले, तो आई हैड टू गो फॉर अ रिसर्च एंड मुझे 2 केस लॉज मिले। कौन से 2? सबसे पहला सीआईटी वर्सेस शीतल दास तीरथ दास, सीआईटी वर्सेस शीतल दास तीरथ दास, और दूसरा सीआईटी वर्सेस सुनील किनारीवाल। शीतल दास तीरथ दास में क्या हुआ था? एक बंदे ने अपनी वाइफ को मेंटेनेंस मनी पे किया था, मेंटेनेंस मनी पे किया था, एंड उसका वो डिडक्शन लेने चला गया। एओ ने डिसअलाउ कर दिया। एओ बोला कि ये तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। मामला कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट ने ये बोला कि इनकम फर्स्ट रीचेस टू द एसएससी, मतलब जिसने मेंटेनेंस मनी पे किया है उसने पहले कमाया, फिर उसमें से पे किया, एंड देन अप्लाइज इट सब्सिक्वेंटली टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन टू पे मेंटेनेंस मनी। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इट। पहले इनकम मैंने कमाया फिर गया। रिस्पोंडेंट ने क्या क्लेम किया था? मेंटेनेंस मनी टू पेड टू वाइफ इज डाइवर्जन ऑफ इनकम। कोर्ट ने बोला नहीं, ये मेंटेनेंस है। दूसरा सीआईटी वर्सेस सुनील किनारी वाला, इसके फैक्ट्स थोड़े से अलग है, लेकिन इसमें कोर्ट ने डिफरेंशिएट किया था एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम को। कोर्ट ने ये बोला कि व्हेन द थर्ड पर्सन बिकम्स एंटाइटल्ड टू एन अमाउंट अंडर ऑब्लिगेशन इवन बिफोर ही लेज अ क्लेम, मतलब मैंने जो एग्जांपल दिया कि मैंने बैंक को क्या बोल दिया, मैं क्लेम ना करूं तो भी उसकी इनकम का 20% मेरे खाते में जमा कर देना, तो इट इज कॉल्ड डाइवर्जन ऑफ इनकम। इट इज कॉल्ड डाइवर्जन ऑफ। अब इस एमसीक्यू को समझते हैं, इस एमसीक्यू को। यहाँ पे देखते हैं। Gotham, being an employee of PQR Private Limited, has instructed his company's HR department to pay 10,000 per month out of his salary to his wife directly। तो भाई सैलरी कौन कमा रहा है? गौतम। उसमें से एचआर किसको पे कर रहा है? उसकी वाइफ को। तो ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम होगा, ना कि डाइवर्जन ऑफ इनकम। क्यों? वो सैलरी पूरी गौतम की।
वो पहले गौतम कमा रहा है एंड देन इट इज गोइंग टू हिज एक्स वाइफ बरखा. तो दिस विल बी एप्लीकेशन ऑफ इनकम बेस्ड ऑन व्हाट वी डिस्कस, बेस्ड ऑन दैट केस लॉ. शीतल दास तीरथ दास उसमें भी यही बोला था. दूसरा, the partnership deed provides that after that B and C shall continue business subject to a condition that 20% of profit of the firm shall be given to Mrs. दया. आप ध्यान देना इसमें, इसमें ध्यान देना. इसके फैक्ट्स जो है वो सुनील किनारी वाला से अलग है. ठीक है, वो आप केस लॉ मत पढ़ना, इतने डेप्थ में मत जाना, मैं आपको बताऊं. अगर ये बी एंड सी 20% पे नहीं करेंगे किसको, इसको, तो वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते. क्यों? सब्जेक्ट टू अ कंडीशन दैट 20% ऑफ द प्रॉफिट इज पेड टू मिसेस दया. मतलब अगर वो प्रॉफिट बी एंड सी मिसेस दया को पे नहीं करते, दे कैन नॉट कंटिन्यू द बिजनेस. दैट मीन्स 20% प्रॉफिट पे मिसेस दया का बेटर टाइटल है कंपेयर टू बी एंड सी. बेटर टाइटल, उसका मतलब दिस इज डाइवर्जन ऑफ इनकम. मिसेस दया अगर उस प्रॉफिट्स को क्लेम भी ना करे, इन दोनों के पास एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू पे दैट 20% टू मिसेस दया. तो मिसेस दया हैज अ बेटर टाइटल ओवर दैट 20% एंड हेंस इट इज अ डाइवर्जन ऑफ इनकम, ना कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम. आई होप आई ट्राइड टू एक्सप्लेन यू वेल. आई होप आप लोगों को समझ में आया. देखो मॉड्यूल में तो 2 स्टेटमेंट दिए है, ठीक है. इतने में मुझे खुद समझ में नहीं आता, मुझे बहुत डीप में जाना पड़ा था. मैंने बहुत शॉर्ट में, बहुत मीनिंगफुल वे में और बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की कोशिश की है. ठीक है. स्टेटमेंट नंबर 1, डाइवर्जन ऑफ इनकम डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम. डाइवर्जन ऑफ, सबसे पहला जो क्या है, पेमेंट ऑफ 20% इस एप्लीकेशन. नो, वो डाइवर्जन है. क्यों? मैंने जैसा आपको बताया, पेमेंट ऑफ एलिमनी बाय गौतम टू हिज एक्स वाइफ इज डाइवर्जन. नहीं, ये एप्लीकेशन है. मतलब एमसीक्यू में उल्टा कर दिया उन लोगों ने. जो डाइवर्जन था उसको एप्लीकेशन बोला, जो एप्लीकेशन था उसको डाइवर्जन बोला. उसका मैंने नीचे रीजन लिख दिया. ठीक है. आपको अगर डेप्थ में जाना हो तो ये केस लॉस पढ़ लेना, मॉड्यूल में मुझे नहीं मिले. ठीक है. इंस्टीट्यूट कहाँ से लाई आई डोंट नो, दिया था मैंने, थोड़ा डेप्थ में बाहर जाके रिसर्च किया, मुझे मिल गया. ठीक है. एप्लीकेशन वर्सेस डाइवर्जन, 2 मार्क के एमसीक्यू के लिए क्या सर इतनी मेहनत वर्थ है? नहीं, याद रख लेना. तो और क्या, याद रख लेना भाई, और तो क्या ही बोल सकते हैं, है ना. What would be the GST treatment of stock lying with शक्तिपुरी? शक्तिपुरी के पास कौन सा स्टॉक पड़ा है? ओल्ड स्टॉक, 1 साल के बाद का. जॉब वर्क का चैप्टर आप पढ़ोगे जीएसटी में, जॉब वर्क का चैप्टर, जॉब वर्क का चैप्टर, उसमें क्या बोलता है? ओल्ड स्टॉक विल बी डीम्ड सप्लाई एंड टैक्स विल बी पेड बाय सप्लायर. मतलब जिसने जॉब वर्कर को माल भेजा था, मतलब कंपनी को इस पे टैक्स भरना पड़ेगा. क्यों? 1 साल के ऊपर स्टॉक उसके पास ऑलरेडी पुराना पड़ा है. ठीक है. और सिमिलर एग्जांपल आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी दिया है. तो एक चीज मैंने ऑब्जर्व की कि आप अगर आईसीआई के स्टडी मटेरियल को अच्छे से पढ़ते हो तो उसी में से कुछ ना कुछ चेंज करके इंस्टीट्यूट मल्टी डिसिप्लिन में पूछता है. ठीक है. सप्लायर ऑफ नोटबुक्स फॉर स्कूल सेंड्स पेपर of required dimension and GSM to a job worker. GSM मतलब gram per square meter to job worker for making the notebooks as per design given. However, government changes the specification of notebook for supply to its schools. Supplier sends a fresh stock. उसमें क्या हुआ था फिर? पुराना new notebooks are easily sold. वही लैंग्वेज थी. But the paper and semi-finished notebook of old design lie in the godown of the job worker. Here, sending of paper by notebook supplier to the job worker in the first lot, मतलब पुराना, shall be deemed to be supply. इसमें भी जो पुरानी टी थी, it will be deemed to be supply and टैक्स भरना पड़ेगा किसको? हमारी कंपनी. बात समझ में आई? इजी था. बांसुरी प्राइवेट लिमिटेड is also engaged in sending raw tea leaves. Basuri Private Limited is also engaged in sending raw tea leaves to job workers and selling the processed tea after the job work is performed. Which of the following form return is to be filed by Basuri Private Limited on the GST portal? ITC 04, इसमें कुछ पढ़ाना नहीं है. ITC 04 is the prescribed return under GST for this purpose. ठीक है. उसमें कुछ पढ़ाना नहीं था. फॉर्म भी याद रखने पड़ते हैं बिल्कुल, लेकिन आपके पास अगर ओपन बुक एग्जाम है, पढ़ा होगा तो 2 मार्क, ये कैश 2 मार्क्स है, ये कैश 2 मार्क्स है. बहुत इजी था. विथ रिस्पेक्ट टू डिसीजन टेकन इन द 4th बोर्ड मीटिंग, कंटेंशन ऑफ डायरेक्टर प्रभुदेवा इज. ध्यान देना, सेक्शन 180 है कंपनी लॉ में. अगर नहीं, सेक्शन 120 हमने पहले कभी डिस्कस नहीं किया. सेक्शन 120 नहीं सर, 180. सेक्शन 180 हमने कभी डिस्कस नहीं किया. रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ बोर्ड. उसमें एक और रेस्ट्रिक्शन दिया है कि भाई एक सर्टन लिमिट से ज्यादा तुम लोग बोरो नहीं कर सकते. और सर्टन लिमिट किस फॉर्म में प्रिस्क्राइब की गई है? बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल एंड ऑल. ठीक है.
लेकिन उस रिक्वायरमेंट के सीधा नीचे ऐसा बोल दिया, दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज, दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज जिन्होंने अपना रिटर्न टाइमली फाइल किया है, रिटर्न फाइलिंग में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, अपनी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, तो 180 प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल ही नहीं है। मतलब सर एक बात बताना, ये जो डेटा है, ये डेटा है, ये इररिलेवेंट है, ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, ये जो डेटा है वो इररिलेवेंट है। क्यों भाई? बिकॉज पूरा जो प्रोविजन है वही प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने पूरा प्रोविजन डाल के लास्ट में ऐसा बोल दिया है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है वो प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे देखिए, hence they can avail the required borrowing as notified by MCA section 180 of the act shall not apply to a private company। यहाँ पे खत्म हो गया MCA, ठीक है। तो ये भी 2 मार्क कैश थे जिन लोगों ने एनुअल रिटर्न या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइलिंग का डिफॉल्ट नहीं किया। अगर ये प्राइवेट कंपनी ना होती तो क्या हमें 180 इवेल्युएट करना पड़ता? बिल्कुल। अभी हम करेंगे? बिल्कुल नहीं। वी विल ओनली स्टिक टू द रेलेवेंट पार्ट इन द केस स्टडी, ठीक है। कभी आएगा तो कर लेंगे। एमसीक्यू पोर्शन खत्म। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। एनालाइज वेदर द एक्टिविटीज एज नरेटेड बाय सीए पुरु टू मिसेस बांसुरी देवी विद रिस्पेक्ट टू खेतीबाड़ी लिमिटेड फॉल विद इन द स्कोप ऑफ इंड 41 विद प्रॉपर रीजन। देखते हैं, देखो एक्टिविटीज कौन कौन सी बताई थी, उससे पहले हम एक काम करेंगे, हम स्कोप ऑफ इंड 41 पढ़ेंगे, ठीक है। स्कोप क्या बोलता है? दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड टू अकाउंट द फॉलोइंग व्हेन दे आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। कौन सी 3 चीजें? बायोलॉजिकल असेट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, क्यों? उसके बाद वो इन्वेंट्री बन जाता है, एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी किसको बोलते हैं, उसका अलग डेफिनेशन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे दिया है, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, और ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी रिफर्स टू मैनेजमेंट बाय एन एंटिटी ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल असेट्स। ध्यान देना यहाँ पे, agricultural activity refers to the management by an entity of the biological transformation and harvest of biological assets। मतलब मेरा कंट्रोल होना चाहिए बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उस पे। बात समझ में आई? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उस पे भी मेरा कंट्रोल होना चाहिए, और बायोलॉजिकल असेट्स पे तो होगा ही अगर ट्रांसफॉर्मेशन पे कंट्रोल है तो। फॉर किसके लिए? फॉर सेल और कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और एडिशनल बायोलॉजिकल असेट्स। ये है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का डेफिनेशन, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है उस पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए, एंड किसके लिए कर रहे हैं? सेल, कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल असेट्स। अब यहाँ पे ध्यान दें, मैनेजिंग एनिमल रिलेटेड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ऑन जू। यहाँ पे तो मैं बायोलॉजिकल असेट्स को प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा, यहाँ पे मैं बायोलॉजिकल असेट्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मैं बस उनका क्या बोलते हैं, शो कर रहा हूँ कि बहुत सारे एनिमल्स लेके आया मैं और जू खोल दिया। क्यों? वहां पे अम्यूजमेंट होगा जो पब्लिक आती है उसको। नो मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मैं कोई बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं कर रहा, मैं खाली असेट्स को मैनेज कर रहा हूँ। किसके लिए? अम्यूजमेंट के लिए। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होगी? बिल्कुल नहीं। फिशिंग इन द ओशन, यहाँ पे भी जो प्रोसेस है उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। क्यों? जो ओशन है वहां पे तो फिशेस नेचुरली ग्रो होती है, उस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज माय एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। लेकिन फिश फार्मिंग, मैंने क्या किया? एक पूल बनाया, वहां पे फिशेस का ब्रीडिंग किया और फिश फार्मिंग किया। क्या ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है उस पर भी मेरा कंट्रोल है। मैनेजमेंट कंट्रोल्स द फिशिंग एंड हार्वेस्ट, ऑल्सो कंट्रोल्स द सोर्स, सोर्स मतलब जो फिश फार्म है, तो ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है? बिल्कुल। डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सेल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस फॉर रिसर्च, सेल नहीं। फॉर कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं। बायोलॉजिकल असेट्स नहीं। रिसर्च नॉट एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एंड लास्ट, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, बिल्कुल ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। क्यों? इट इज फॉर सेल और कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सेल के लिए, क्योंकि ड्रग्स को मैं आगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को सेल कर दूंगा। बात समझ में आई? हमने कहा डिग डाउन किया, यहाँ पे सबसे पहले हम गए स्कोप पे। स्कोप पे से मुझे पता चला एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का डेफिनेशन, वो मैंने पढ़ा, मेरा क्लियर हो गया कि भाई इन एक्टिविटीज को एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बोलेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल बहुत इजी था एज सच देखा जाए तो। बट ये चीजें ना थोड़ी नई है हमारे लिए, मतलब एग्रीकल्चर वगैरह तो थोड़ा बहुत आपको ऐसा लग सकता है कि ये कुछ एडिशनल हमने पढ़ा, लेकिन बहुत इजी था।
You are required to state the income tax implication of withdrawal from a deposit account during financial year 23-24 relevant to assessment year 24-25. मैंने टी कॉफी रबर बोर्ड में कुछ पैसा डाला था, उसके बाद उसका विड्रॉल किया, उसका इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन बताना है। ठीक है, ध्यान दें। ये स्टोरी, ये क्वेश्चन था, कितना क्वेश्चन था, अब स्टोरी है। ड्यू डेट ऑफ आरओआई क्या है? 39/23। अच्छा, आपको एक सेक्शन पढ़नी है डीटी में, 33AB। 33AB क्या बोलता है कि अगर आपकी कंपोजिट इनकम है, किसकी? ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, कॉफी, टी, रबर एक्सेट्रा, एंड आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले कुछ अमाउंट टी कॉफी रबर बोर्ड ने जैसे प्रिस्क्राइब किया है वैसे जमा करवा देते हो, टी कॉफी रबर बोर्ड ने जैसे प्रिस्क्राइब किया है वैसे जमा करवा देते हो, तो जो अमाउंट जमा करवाई उसका उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कहाँ पे? 33AB में। ठीक है, लेकिन उस अमाउंट को जब आप विथड्रॉ करो तो जैसा हमने टी कॉफी रबर बोर्ड ने जैसा बोला है वैसे ही उसको यूटिलाइज करना है। 10 लाख मैंने विड्रॉ किया तो टी कॉफी रबर बोर्ड बोले वैसे मुझे यूटिलाइज करना है, अगर नहीं किया तो टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, जिस साल में मैंने विड्रॉ किया उसी साल में पूरा यूटिलाइज करना है, उस साल में यूटिलाइज नहीं किया टैक्सेबल हो जाएगा। रेलेवेंट पोर्शन मैंने बता दिया। ड्यू डेट क्या है आरओआई का? 30 सितंबर 23। ठीक है, अब हुआ क्या? 1 सितंबर 23 मतलब ड्यू डेट से पहले पहले इट डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 10 लाख टू टी डेवलपमेंट अकाउंट। मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 में मैंने 10 लाख का डिडक्शन क्लेम कर लिया। क्यों? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले मैंने 10 लाख रुपए जमा करवा दिए। तो 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 की मेरी इनकम क्या आएगी? देखो, प्रॉफिट एज पर बुक्स 50 लाख गिवन है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB कितना मिलता है वो भी देख लो। टी कॉफी रबर बोर्ड के हिसाब से जितना डिपॉजिट किया, या तो 40% ऑफ दिस प्रॉफिट्स, मतलब डिडक्शन से पहले 40%, विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलता है वापस से, जितना अमाउंट डिपॉजिट किया, और 40% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर डिडक्शन विच एवर इज लोअर। तो 10 लाख का मैंने डिडक्शन क्लेम कर लिया। कंपोजिट इनकम आफ्टर डिडक्शन कितनी हुई? 40 लाख। इसका सिर्फ 40% टैक्सेबल होगा, कितना? 16 लाख। 15 लाख की मेरी कैरिड फॉरवर्ड लॉस था, तो 1 लाख रुपए का मेरा बिजनेस इनकम बना प्रीवियस ईयर 22-23 का। प्रीवियस ईयर 22-23 का हमने कंप्यूटेशन किया, जहां पे हमने 10 लाख का डिडक्शन लेके नेट 1 लाख की इनकम बताई। लेकिन हुआ क्या? ध्यान देना, हुआ क्या? ऑन 21 जनवरी 2024 मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 में, प्रीवियस ईयर 23-24 में मैंने 10 लाख रुपए विड्रॉ किए। उसमें से 6 लाख रुपए परचेज ऑन नॉन डेप्रिशिएबल एसेट एज पर स्कीम नोटिफाइड। एज पर स्कीम नोटिफाइड मतलब 6 लाख रुपए मैंने जैसा स्कीम में बोला था वैसे विड्रॉ करके यूटिलाइज किए। तो क्या इस पर डिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उल्टा बोलू तो इसका जो विड्रॉल है, क्या ये वायोलेट किया कौन सी कंडीशन को? 10 लाख की कंडीशन को, पेमेंट की? नहीं, दिस इज नॉट अ वायोलेशन ऑफ द कंडीशन। तो इस पे मेरा डिडक्शन इसका टैक्सेबल नहीं होगा, सॉरी, ये टैक्सेबल नहीं होगा। 3 लाख फॉर परचेज ऑफ मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस, ये वायोलेशन है। 33AB में सर्टेन कंडीशंस दिए कि आप इस अमाउंट को विड्रॉ करने के बाद इन इन जगह पे यूटिलाइज नहीं कर सकते। उसमें ऐसा बोला है कि आप ऑफिस प्रीमाइसेस में कोई प्लांट एंड मशीनरी के लिए उसको यूज नहीं कर सकते। और तीसरा, जिस साल में विड्रॉ किया उसी साल में यूटिलाइज करना है। मैंने 23-24 में किया तो मुझे 23-24 में यूटिलाइज करना था, मैंने 24-25 में यूटिलाइज किया, चलेगा? नहीं चलेगा। तो इम्प्लीकेशन क्या आएगा? ध्यान दें, 6 लाख है वो एज पर स्कीम है, नॉट टैक्सेबल। मैंने नॉट टैक्सेबल लिखा है क्यों? डिडक्शन तो ले लिया ना। 3 लाख इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस नॉट परमिटेड अंडर 33AB एडेड टू इनकम। एक बार डिडक्शन ले लिया, अब उसको मुझे टैक्सेबल करना है तो क्या करूंगा मैं? अगले साल की इनकम में ऐड कर दूंगा। और 1 लाख नॉट यूटिलाइज्ड इन द सेम प्रीवियस ईयर, नॉट परमिटेड अंडर सेक्शन 33AB एडेड टू टीवाई के क्वेश्चन 5 पीजीबीपी, सेम क्वेश्चन है, इतना पोर्शन। ठीक है, टीवाई के क्वेश्चन 5 पीजीबीपी। अच्छा, दूसरी बात ध्यान देना, क्वेश्चन ने क्या पूछा था? इनकम टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ विड्रॉल। तो आंसर मेरा इतना ही बनता है, आंसर मेरा इतना ही है। ये ऊपर जो किया ये एक्स्ट्रा स्टेप है। अच्छा, तो सर क्यों किया? बिकॉज टीवाई के क्वेश्चन 5 पीजीबीपी में ये किया हुआ था। क्यों? उसमें एडिशनल रिक्वायर्ड पार्ट था। वापस से जो ये क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकंड, हाँ, जो ये क्वेश्चन है उसमें 2 रिक्वायर्ड पार्ट थे। पहले तो इनकम कंप्यूट करो, उसके बाद इनकम टैक्स इंप्लीकेशन बताओ। ये लोगों ने क्या किया? सेम क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया, सेम आंसर को कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन रिक्वायर्ड पार्ट को कॉपी पेस्ट नहीं किया।
ठीक है, तो वी कैन डू इट स्मार्टली। हम सिर्फ इतना आंसर एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, ये आप एग्जाम में ना लिखो तो चले, लेकिन इंस्टीट्यूट ने आंसर में दिया है, तो एज पर रिक्वायर्ड पार्ट आपको सिर्फ इतना ही आंसर बनता है। कितना है? इतना। मैंने क्यों पूरा बता दिया? बिकॉज टीवाई के उस क्वेश्चन में पूरा बताया और इंस्टीट्यूट ने कॉपी पेस्ट किया है वहां से। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, और लास्ट पार्ट, what specific factors for online shopping would be considered by CA Puru in formulating the audit strategy of the company in the above case, keeping in mind the concern raised by Mr. Prabhudeva? मिस्टर प्रभुदेवा ने पुरु भाई को क्या बोला था कि हमने बहुत सारा बिजनेस ऑनलाइन ले लिया, तो अपने ऑडिट में ऑनलाइन बिजनेस के रिलेटेड जो भी चीजें है उसको ध्यान से चेक करना। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे? सबसे पहली चीज ध्यान देना, सुन लेना। सबसे पहली चीज, कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन बिजनेस का इंप्लीकेशन आता है, मतलब कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जो ऑनलाइन होते हैं। सिंपल, कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जो ऑनलाइन होते हैं, सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस वगैरह पे। दूसरा, क्या वो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मटेरियल है? यस, तो ही उस पर अलग स्ट्रेटेजी बनेगी। वापस से, अगर ट्रांजैक्शंस मटेरियल नहीं है तो उस पर अलग स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी। तो आई हैव टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस in online nature which are material to the financial statements. दूसरा स्टेप, उस ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस एंड ट्रांसफर एंड रिपोर्ट करने के लिए, इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस, ट्रांसफर एंड रिकॉर्ड करने के लिए जो भी प्रोसेस है उसको बोलते हैं, उसको आपको कंसिडर करना है स्ट्रेटेजी में। तीसरा, उस प्रोसेस के अंदर जो जो भी कंट्रोल्स है उसको आपको कंसिडर करना है। चौथा, उस ट्रांजैक्शन को रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स है, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो आपको चेक करना। फिर प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग इवेंट्स आउटसाइड द रिकॉर्डिंग प्रोसेस, मतलब कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो मेरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग की प्रोसेस से बाहर रह रहा है, उसका इंपैक्ट हो रहा है क्या मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। और लास्ट, कंट्रोल अराउंड द जर्नल एंट्रीज। आपको कुछ समझ में नहीं है मुझे पता है, ध्यान दो, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑनलाइन सेल्स करता हूँ, सेल्स जो है वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मटेरियल है, बिल्कुल। अब सेल्स की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एंड रिसीवेबल्स प्रोसेस। रेवेन्यू एंड रिसीवेबल्स प्रोसेस, उस प्रोसेस को मुझे कंसिडर करना है। उस प्रोसेस के अंदर कंट्रोल्स होंगे, किस पे? परचेज ऑर्डर बनाने पे, इनवॉइस बनाने पे, ठीक है, डिस्पैच करने पे, बहुत सारे कंट्रोल्स होंगे, उन कंट्रोल्स को कंसिडर करना है। उस कंट्रोल के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, कौन से ट्रांजैक्शंस होंगे? कौन से? सेल्स के। सेल्स का क्या, इनवॉइसिंग बराबर हुआ है या नहीं, शिपिंग बराबर हुआ है या नहीं, पेमेंट आया है या नहीं, ये सब चेक करना है। तो ये तो पूरा फ्लो हो गया। दूसरा, मैंने सेल्स कर दिया, ठीक है, अब कोई कस्टमर है मेरा, कोई कस्टमर है जिसको मुझे पैसा देना बाकी है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डिटीरियोरेट हो गई। अब वो मेरी अकाउंटिंग सिस्टम तो कैप्चर नहीं करेगी, लेकिन हाउ मैनेजमेंट इज आइडेंटिफाइंग इवेंट्स एंड कंडीशंस दैट आर मटेरियल बट नॉट इनटू द रिकॉर्डिंग प्रोसेस। और लास्ट, कंट्रोल्स अराउंड जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज मतलब जितना मैंने प्रोसेस और कंट्रोल से जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया वो तो सेल्स के नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हो गए, लेकिन अगर सेल्स में कोई एडजस्टमेंट करना है, जैसे बैड डेट्स का एडजस्टमेंट करना है डेटर्स में, तो वो तो मैं मैन्युअली करूंगा। कहाँ पे? सिस्टम्स में। तो उसके ऊपर क्या कंट्रोल्स है वो ध्यान रखना है आपको। अगर समझ में नहीं आया तो हाई लेवल लगा तो फ्लो समझ लो। सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शन, उसके बाद आता है उसका प्रोसेस, उसके बाद आता है उसका कंट्रोल, उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन। वापस से ट्रांजैक्शन, पहले तो मुझे डिसाइड करना है ट्रांजैक्शन मटेरियल है या नहीं, उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन बराबर रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। अगर मटेरियल नहीं है, आएगा ही नहीं। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करो कि कौन से ट्रांजैक्शन मटेरियल है। दूसरा, प्रोसेस आइडेंटिफाई करो। तीसरा, कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करो। चौथा, ट्रांजैक्शन को चेक करो। ये पूरी प्रोसेस के बाहर कोई इंपैक्ट है उसको चेक करो। एंड प्रोसेस होने के बाद एडजस्टमेंट ईयर एंड में जो हो रहा है उसके ऊपर क्या कंट्रोल्स है वो भी चेक करो। ठीक है सर, आप ऑडिट में, ये आपका ब्रेड एंड बटर रहता है ऑडिट में, है ना, ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाना है ना। लेकिन मैंने आपको ये थोड़ी फ्लो बताया, और ये फ्लो जो ऑडिट स्ट्रैटेजी का है ना, वो हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम के लिए सेम रहता है। तो अगर आप ऑडिट पढ़ोगे उसमें भी आपको ऐसा ही फ्लो दिखेगा। ठीक है, दिस वॉज केस स्टडी नंबर 7। केस स्टडी नंबर 7 का सबसे मेरा फेवरेट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम। दूसरा मेरा फेवरेट पॉइंट है ऑडिट स्ट्रैटेजी पर। ठीक है, वी विल मूव टू केस स्टडी नंबर 8, लास्ट केस स्टडी, देन वी विल बी फ्री फ्रॉम IBS फॉर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, लेट्स मूव टू केस स्टडी नंबर 8। चलिए, केस स्टडी नंबर 8, लास्ट केस स्टडी, रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ते हैं। अच्छा, ये केस स्टडी में आपको बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज बहुत सारे नंबर्स इन्वॉल्व है, बहुत छोटी सी है, फटाफट आपको हो जाएगा, मजा भी आएगा आपको। ठीक है, देखते हैं MCQs।
With reference to information given in point 3, compute FOB value of machinery purchased by SSI Private Limited as per Customs Act. Valuation under customs. Valuation का क्वेश्चन है. With reference to information given in point 3, compute assessable value of machinery purchased by SSI Private Limited as per customs. ये भी valuation का क्वेश्चन है. With reference to information given in point 3, compute the total customs duty and integrated tax payable by as per Customs Act 1962. ज़्यादा फास्ट लग रहा है क्या? सॉरी. In respect of imported machine. ये भी valuation का क्वेश्चन है. With reference to information given in point 2, compute the income of MVS Private Limited taxable under the head income from other sources. ये DT का क्वेश्चन है. Existence of which of the following condition would make it appropriate for Shivalik Construction Private Limited to recognize revenue only to the extent cost are incurred. ये Ind AS 115 का क्वेश्चन है. Ind AS 115 पहली बार आया है, लेकिन मॉड्यूल का सेम टू सेम दे दिया है, तो ज्यादा टफ नहीं है. Descriptive. Compute the total income of MVS Private Limited for AY 24-25 and tax liability and the income tax on such income, indicating reasons for the treatment of each item. Ignore provisions relating to MAT. Assume the company does not opt for 115 BAA. Turnover for 21-22 is 250 crore. मतलब इसका जो tax rate होगा वो 25% होगा. How will Shivalik Construction Private Limited recognize revenue as per the relevant Ind AS if performance obligation is met over a period of time? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. चिंटू केस स्टडी. आ जाओ फटाफट से खत्म करते हैं. केस स्टडी नंबर 8. LWS and Company, a chartered accountant firm, has been into practice since 2006 in Delhi. CA Suresh Shah and CA Harvinder Kaur started their firm after practicing individually almost for 4 years, and now firm has grown into a big firm of 5 partners. The partners of the firm contributed various articles on subjects of DT and allied laws in professional journals and magazines. The clientele encompasses various segments such as software, education, NGO, government body, real estate, construction, jewelry, and a host of others. Over the years, the firm has evolved into a renowned professional firm that has worked on various assignments ranging from statutory audit, management audit, income tax planning, FEMA consultancy, direct GST consultancy, establishment of overseas ventures, and other related matters. Noise थी, काट दी. ये भी noise है. The firm has a unique way of training its articles by involving them in the experienced partners on crucial projects so that they can be able to learn and understand the practical issues arising in different industries. Currently, Subhash, Ashish, Manoj, being the articles of the firm, are working with CA Harsh Bhatia, Nikhil Grover, and Sakshi Ahuja, respectively, for prestigious clients of the firm. Noise था, काट दो, खत्म. अब 3 पैराग्राफ पढ़ना है, खत्म हो जाएगा. Currently, CA Harsh Bhatia is working on applicability of Ind AS on various clients. Firm has a prestigious client, Shivalik Construction Private Limited, a construction company. On 1st January 2024, the company contracts to renovate a building. A construction company. On 1st January 2024, the company contracts to renovate the building, including installation of new elevators. The company estimates the following with respect to the contract. Transaction price 60 lakh. Elevator expected cost, elevator 10 lakh, other cost 35 lakh. The company purchased elevator and they are delivered to on the site 6 months before they will be installed. The company uses an input method based on the cost to measure the progress towards completion. Input method, output method, Ind AS 115 में मिलेगा आपको. Company has incurred actual other cost of 7 lakh by 31st March 2024. The accounts team of the company is facing difficulty in recognizing revenue in respect of the above contract. So they have approached CA Harsh Bhatia with the above mentioned fact. CA Harsh Bhatia delegated said work to Subhash to start initial working and then revert to him with his opinion. ठीक है, Ind AS 115 का. Ashish assisting CA Nikhil Grover. CA Nikhil Grover handles tax department of the firm. The final calculation of the income tax and tax planning is being headed by CA Nikhil Grover. He is nowadays being assisted by Ashish, one of the oldest clients of the firm, MVS Private Limited. The accountant of the company approached CA Nikhil Grover for the calculation of final tax liability of the company. CA Nikhil assigned this work to Ashish. CA लोग कुछ कर ही नहीं रहे क्या? The accountant shows financials of the company to Ashish as below. Computation of income का क्वेश्चन है, रुक जाओ, ये मैं पूरा अभी नहीं पढ़ रहा, बिकॉज टोटल इनकम का एक क्वेश्चन अपन ने अभी देखा, तो उसके टाइम ये वापस पढ़ना पड़ेगा. तो टोटल इनकम का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये अपन को अलग से पूरा सॉल्व करने का आएगा. ठीक है, देखते हैं. मनोज असिस्टिंग सीए साक्षी आहूजा. Mr. Amit, director of SSI Private Limited, visited CA Sakshi Ahuja, who is handling all custom related work
of clients for the past 7 years. The company imported machinery from USA by air, for which details are given as under. FC signifies foreign currency in the appended table. Purchase cost of machinery 7,000 FC डॉलर मान लेते हैं. Air freight 2,000, insurance 100, local agent commission, not buying commission मतलब ये इंक्लूड हो जाता है, एक्सक्लूड नहीं होता. 4,500, एक्सचेंज रेट 70, कस्टम ड्यूटी ऑन मशीनरी, कस्टम ड्यूटी का रेट्स दिए. ठीक है, फटाफट से आ जाए. एक मिनट, एमसीक्यू कैलकुलेटर मैं ही कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूँ. सर क्या करते हो, रुको. कैलकुलेटर केस स्टडीज में इस बार पहली बार यूज हो रहा है, थोड़ा खुश हो जाओ यार. With reference to information given in point 3, compute FOB value of machinery purchased by SSI Private Limited. अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ कस्टम्स में आप पढ़ोगे बहुत डिटेल में. FOB वैल्यू प्लस फ्रेट, अगर एयर फ्रेट है तो रेस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ FOB, प्लस इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस नहीं दिया तो 1.125% ऑफ FOB. ये आएगा आपका असेसिबल वैल्यू. उसमें बेसिक कस्टम्स ड्यूटी प्लस SWS, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, उसका टोटल, उस पे इंटीग्रेटेड टैक्स आपको पे करना है. ठीक है, ये फॉर्मेट मैंने बहुत शॉर्ट में बताया कंपेयर इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस केस स्टडी, है ना. बाकी आप वैल्यूएशन में बहुत डीप में पढ़ने वाले हो. कस्टम्स 25 मार्क्स का आता है, जिसमें से 7-8 मार्क्स का तो सिर्फ वैल्यूएशन आता है. ठीक है, तो 7,000 का मशीन है जिसका 70 का रेट है, 4,90,000 प्लस वहां पे मैंने लोकल एजेंट को कुछ कमीशन पे किया तो भी ऐड होगा 4,500. 494500 ये वाला ऑप्शन. अच्छा, FOB क्या होता है? फ्री ऑन बोर्ड, मतलब शिप तक नहीं, शिप के ऊपर, शिप तक नहीं, शिप पे लोड हो जाने तक के जितने भी खर्चे हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे. मतलब फ्रेट इंक्लूड नहीं होगा, लोकल फ्रेट, शिप तक का फ्रेट इंक्लूड होगा, लोडिंग अनलोडिंग इंक्लूड होगा, लेकिन उसके बाद का एयर फ्रेट, सी फ्रेट, इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं होगा. उसको फ्री ऑन बोर्ड बोलते हैं. समझा? ठीक है. विथ रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन गिवन इन पॉइंट 3, असेसिबल वैल्यू. अच्छा, FOB प्लस एयर फ्रेट प्लस इंश्योरेंस, वो हो जाएगा आपका असेसिबल वैल्यू. FOB कितना था ऊपर आपने कैलकुलेट किया, 494500. एयर फ्रेट कितना है? एयर फ्रेट आपने कितना पे किया है? $2,000. 2,000 इंटू 70 कितना? 1,40,000. लेकिन एयर फ्रेट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ FOB, तो और 494500 का 20%, 98900, विच एवर इज लोअर, 98900 को कंसिडर किया जाएगा, इसको इग्नोर. प्लस इंश्योरेंस एक्चुअल जो होता है वही जाता है, तो 100 इंटू 70 क्या आएगा? 494500 प्लस 98900 प्लस 7000, 600,400. ये आएगा आपका असेसिबल वैल्यू. विथ रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन गिवन इन पॉइंट 3, कंप्यूट टोटल कस्टम्स ड्यूटी एंड IGST. अच्छा, असेसिबल वैल्यू कितना है? 600,400. उस पे 10% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी कितना आएगा? 600,40 प्लस 10% SWS, किसका? 600,400 का, 6,004. इसका टोटल लगा दो, 600,400 प्लस 600,40 प्लस 6,004, 666,444. इस पे IGST का रेट कितना है? 12%. तो इस पे 12% IGST लगा लो, 79973. तो इतना IGST पे करना है और इतना मुझे कस्टम्स पे करना है. तो टोटल कितना पे करना है? टोटल पूछा है 600,40 प्लस 6,004 प्लस 79973, 146,017 मुझे फाइनल कस्टम्स ड्यूटी प्लस IGST पे करना है. सर बहुत स्पीड में जा रहा है और कुछ है ही नहीं. With reference to information given in point 2, compute the income of MVS Private Limited taxable under IFOS. रुक जाओ, हमने इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 2 पढ़ा ही नहीं है, तो ये MCQ हम लास्ट में देखते हैं. क्यों? टोटल इनकम के साथ देखेंगे. लास्ट MCQ थोड़ा कंसेप्चुअल है, ध्यान देना. Existence of which of the following conditions would make it appropriate for Shivalik Construction Private Limited to recognize revenue only to the extent of cost incurred. मतलब Ind AS 115 कुछ ऐसी कंडीशंस बताता है जहां पे आप रेवेन्यू कितना बुक करोगे जितना कॉस्ट था, कितना रेवेन्यू बुक करोगे जितना कॉस्ट था. फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं जस्ट के लिए, इसी केस स्टडी में है, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी हूं, मैंने एलिवेटर्स खरीदे बिल्डिंग पे लगा दिए, एलिवेटर्स खरीदे बिल्डिंग पे लगा दिए, एलिवेटर्स पे मैंने कुछ काम किया, एलिवेटर्स पे मैंने कुछ काम नहीं किया. तो मैंने जब काम नहीं किया, क्या मुझे उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं.
तो मैं रेवेन्यू कितना बुक करूंगा, जितना कॉस्ट इनकट किया, क्योंकि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट 0 हो जाएगा। तो उस पोर्शन पे मुझे प्रॉफिट बुक करने नहीं मिलेगा, क्यों, मैंने उस पर कुछ काम नहीं किया। ये जिस्ट था। अब कंडीशंस क्या बोलती है, आपको रेवेन्यू इंड AS 115 में डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। कंडीशंस कौन कौन सी आती है, 1, 3, 4 एंड 5। ध्यान देना, 1 कौन सी है, द गुड्स डू नॉट रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। द गुड्स डू नॉट रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मतलब, ध्यान देना, गुड्स कौन सा, एलिवेटर, समझ लो अभी। क्योंकि अगर एलिवेटर पे मुझे डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होता तो उस पर मुझे कुछ काम करना पड़ता, कुछ काम नहीं करना है, सीधा खरीदनी है, चिपका देनी है। कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ द गुड्स सिग्निफिकेंटली बिफोर सर्विसेज, बिकॉज ध्यान दो, अगर मैं कस्टमर के बिहाफ पे वो लिफ्ट खरीद रहा हूं, एलिवेटर खरीद रहा हूं, तो उस पर मेरा कंट्रोल है, बिल्कुल नहीं। एलिवेटर पे कंट्रोल किसका है, वो तो कस्टमर का है ना, मेरा तो है नहीं। एलिवेटर का एग्जांपल ही आप कंटिन्यू करो, एलिवेटर पे कंट्रोल किसका है, कस्टमर का, मेरा तो कंट्रोल ही नहीं है। बिफोर रिसीविंग द सर्विसेज, जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज मैं कस्टमर को दे रहा हूं, उससे पहले एलिवेटर का कंट्रोल आ गया है। मैं एलिवेटर फिट करूंगा, एलिवेटर में फिट करूंगा, उससे पहले उसका मालिक कौन है उस एलिवेटर का, मेरा कस्टमर, ना कि मैं। चौथी कंडीशन, कॉस्ट ऑफ सच गुड्स इज सिग्निफिकेंटली रिलेटिव टू द टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मतलब अगर मैं वो एलिवेटर नहीं लगाऊंगा तो मेरा परफॉर्मेंस एप्लीकेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो जो एलिवेटर का कॉस्ट है वो मेरे टोटल कॉस्ट में जुड़ा हुआ है, भले मैं उसमें काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो मेरे टोटल कॉस्ट का रिलेटिव है, जुड़ा हुआ है। का रिलेटिव नहीं, से रिलेटिव है, जुड़ा हुआ है। द एंटिटी प्रोक्योर्स द गुड्स फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, देखो मेन कंडीशन आई, and does not significantly involve any designing manufacturing of goods even though entity is a principal in the arrangement between the entity and the end customer। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इस एमसीक्यू के लिए ये है कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा, एलिवेटर आ रहा है, मैं चिपका रहा हूं, कंट्रोल किसके पास है, कस्टमर के पास है ना। एंड पहली कंडीशन की थी एलिवेटर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट किसका है, बिल्डिंग का। बात समझ में आई, तो आंसर है बी। अगर आपको ये ऊपर से गया, आपको इंड AS 115 बहुत डेप्थ में पढ़ना है, तो उसमें बहुत सारी इंटर रिलेटेड कंडीशंस है। मैंने आपको एलिवेटर के एग्जांपल के साथ एक जिस्ट दिया कि भाई एलिवेटर का कंट्रोल किसका है, कस्टमर का। एलिवेटर लगाने का कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल बिल्डिंग बनाने का है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एलिवेटर इज सिग्निफिकेंट एंड मैं उस पर कुछ काम नहीं कर, तो ये सेट ऑफ कंडीशन सेटिस्फाई करना, ठीक है। एमसीक्यू पोर्शन खत्म। कंप्यूट द टोटल इनकम, डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ MVS प्राइवेट लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 एंड द टैक्स लायबिलिटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑन सच इनकम इंडिकेटिंग रीजंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम, इग्नोर प्रोविजंस रिलेटिंग टू मैट, अज्यूम द कंपनी डज नॉट ऑप्ट फॉर 115BD वाले टैक्स रेट 25%। अब यहाँ पे आ जाओ, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फटाफट देख लेते हैं। ये DT में आप करोगे बहुत डेप्थ में, बहुत ईजी लगने वाला है। अगर आपका DT हुआ है, नहीं हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो, जब DT हो जाएगा समझ में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स कितना है, 75 लाख डाल दिया। दूसरा, 2 लाख कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। एक सेक्शन होती है 40A9, वो ऐसा बोलती है कि एम्प्लॉय रिलेटेड आप ऐसा कोई भी कंट्रीब्यूशन करते हो जिसका एंड बेनिफिट एम्प्लॉय, किस एम्प्लॉय को मिलेगा वो भी नहीं पता, एम्प्लॉय को मिलेगा भी नहीं वो भी नहीं पता, तो ऐसा एक्सपेंस हम अलाउ नहीं करेंगे, तो एड बैक हो जाएगा। अच्छा, फॉर्मेट क्या रहता है, नेट प्रॉफिट एट डिसअलाउड एक्सपेंसेस लेस अलाउड एक्सपेंसेस। ये अलाउड एक्सपेंसेस है तो लेस कर दिया, मैंने रफ में बनाया। 7,80,000 paid towards course fee and hostel expenses of MBA course of a close relative of director. Relative is not employment in the company। भाई आप किसी रिलेटिव का पेमेंट करोगे तो इनकम टैक्स आपको थोड़ी इनकम में से डिडक्शन दे देगा, क्यों, दिस इज नॉट इनकर्ड फॉर योर बिजनेस पर्पसेस, डिसअलाउ, एड बैक हो जाएगा, ठीक है। 3.5 lakhs being expense incurred for installation of traffic signals so as to facilitate its employees coming to office to overcome traffic jam and save office time। ये अलाउ हो जाएगा, क्यों, बिजनेस एक्सपेंस में अलाउ हो जाएगा। सेक्शन 30 to 36 में नहीं तो 37 में अलाउ हो जाएगा। 3 lakhs spent on gift item distributed to various dealers under company sales incentive scheme, ये भी अलाउ हो जाएगा, क्यों, मार्केटिंग एक्सपेंस है, अलाउड है। 6 lakhs being expense incurred on the traveling of MD's wife who accompanied him to the tour, सिंगापुर टूर, वाह सही है, ऑन क्या कर रहा हूं मैं, इन्विटेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स चेंबर सिंगापुर। अच्छा, ये अलाउ होगा कि नहीं, फर्स्ट इंस्टेंस में आपको लगेगा यार पर्सनल एक्सपेंस है, लेकिन अलाउड है बिकॉज ऑफ वन केस लॉ, हीरो
होंडा मोटर्स लिमिटेड वर्सेस सीआईटी दिल्ली। ठीक है, इस केस लॉ में ऐसा बोला गया है कि ऐसे एक्सपेंसेस जहां पे इट इज कस्टमरी कि जो एमडी लोग होते हैं या बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो अपने स्पाउसेस के साथ जाते हैं, इट इज कस्टमरी, वहां पे आप इस एक्सपेंस को अलाउ कर दो। लेकिन वो ट्रिप वो बिजनेस ट्रिप होनी चाहिए, ना कि, और वो बिजनेस ट्रिप है ऐसा सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा किसको, कंपनी को। तो इस केस लॉ, ये केस लॉ बहुत बड़ा है, लेकिन इस केस लॉ में ना 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस थे। ठीक है, कोर्ट ने एक को अलाउ किया था, एक को नहीं किया था। वहां पे सब्सटैंशिएट करना पड़ता है कि दिस इज अ ट्रैवल फॉर बिजनेस प्रमोशन, तो ये अलाउ हो जाएगा। याद रखने जैसा पॉइंट है, ये याद रख लेना, बिजनेस ट्रिप है। 3 लाख being amount paid in March 24 consequent upon change in currency rate due to exchange fluctuation in excess of amount due to a supplier of machinery. Second hand machinery was acquired and put to use on 10th September 23। अच्छा, ये पीएनएल में अलाउ नहीं होगा, इसको आपको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पीएनएल में अलाउ नहीं हो रहा है, तो आपको इसको ऐड बैक करना पड़ेगा, एडेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट। एंड लास्ट, कैश एक्सपेंसेस को डिसअलाउ करना पड़ेगा। क्यों? 2 सेपरेट वाउचर्स है, लेकिन सर बंदा एक ही है। 2 सेपरेट वाउचर्स है, बंदा एक ही है। बंदा अलग अलग हो या अलग अलग दिन हो तो अलाउ हो जाता है, लेकिन बंदा एक ही है तो भाई डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो कैश एक्सपेंस को डिसअलाउ कर दिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन, अच्छा उसके पहले, इंटरेस्ट ऑफ 2 लाख पेड इन सितंबर 23 टू अ कंपनी ऑन अ लोन टेकन, फॉर्म नहीं फ्रॉम आता है। टीडीएस deducted during previous year 23-24 from such interest was deposited in April 24। देखो TDS डिडक्ट तो उसी साल में करना पड़ता है, आप डिपॉजिट अगले साल कर सकते हो। टैक्स डिडक्ट उसी साल में करना है, डिपॉजिट आप अगले साल में कर सकते हो। कब तक? अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग कर दिया है, बिल्कुल। टैक्स डिडक्ट उसी साल में कर दिया है, बिल्कुल अलाउ हो जाएगा। डिसअलाउ नहीं होगा, तो एड बैक नहीं होगा। Audit fee of 6 lakh was credited during previous year 22-23 without deducting tax at source। पिछले साल में ATDS नहीं काटा था। Such fee was paid to auditors in September 23 after deducting tax under section 194J and tax was so deducted was paid on September 7th 2023। मतलब अगले साल मैंने TDS को डिपॉजिट कर दिया, तो अगले साल में जो डिसअलाउ हुआ था एक्सपेंस वो अलाउ हो जाएगा, बिल्कुल। 6 लाख का 30% डिसअलाउ हुआ होगा, कितना? 180। वो 180 इस बार अलाउ हो जाएगा, इनकम में से लेस हो जाएगा, क्यों? अलाउ हो रहा है। और दूसरा देखो, ये कॉस्ट ऑफ असेट में मैंने कुछ ऐड किया, क्या? 3 लाख, तो 3 लाख पे डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। 3 लाख इंटू 15%, मशीनरी पे 15%, और सितंबर 10 को पुट टू यूज किया था तो फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। 3 लाख का 15% 45,000 का आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो ये आपका पीजीबीपी का इनकम होगा, क्या? 8582,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए आपको ये चीज पढ़नी पड़ेगी, और इसका एमसीक्यू भी है, ठीक है, ध्यान दो यहां पे। With reference to information given in point 2, compute the income of MVS Private Limited under IFOS। Point 2 में क्या information दिया था? During financial year under consideration, the company purchased 10,000 shares of AB Private Limited out of its total 2 lakh shares at 40, fair market value 60। इसको गिफ्ट बोला जाता है। 56 to 10 शेयर्स पे लगता है, बिल्कुल। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, 10,000 पे मैंने 20 रुपया कम पे किया, कितना? 2 लाख, और 2,50,000 से ज्यादा है, बिल्कुल, तो पूरे 2 लाख टैक्सेबल होंगे। तो आईफोस में कितना टैक्सेबल होगा सर? 2 लाख। यहां पे आईफोस में ऐड बैक कितना होगा सर? आईफोस में ऐड कितना होगा? 2 लाख। ये मेरी जीटीआई आई, इस पे 20% टैक्स, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। दिस इज माई टोटल टैक्स लायबिलिटी। हर एक एडजस्टमेंट को डिस्कस किया, कंप्यूटेशन फटाफट किया, इसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, उसमें से आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और आई डोंट थिंक अभी दिसंबर में लोगों का डीटी खत्म हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का डीटी बाकी होता है। तो जब आप डीटी पढ़ोगे ये क्वेश्चन बच्चे जैसा लगेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। दूसरा रिक्वायर्ड पार्ट क्या है? हेलो, दूसरा रिक्वायर्ड पार्ट क्या है? कुठे गेला? हाउ विल शिवालिक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज पर रेलेवेंट इंड एएस? ध्यान देना, बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी। देखो, ट्रांजैक्शन प्राइस 60 लाख, एलिवेटर वाला एग्जांपल वापस इधर मारूंगा मैं। ट्रांजैक्शन प्राइस 60 लाख, कॉस्ट ऑफ एलिवेटर 10 लाख, अदर कॉस्ट 35, टोटल कॉस्ट 45। तो ध्यान देना,
ये मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस है, ये मेरा कॉस्ट है। इसमें से दोनों में से 10-10 लाख उड़ा दो, मतलब सर मेरा कॉस्ट कितना हो जाएगा, ट्रांजैक्शन प्राइस कितना हो जाएगा 50 लाख, और मेरा कॉस्ट कितना हो जाएगा सर 35 लाख। अब मैंने एक्चुअल कॉस्ट इनकर कितना किया है 7, तो 7 डिवाइड बाई 35 इंटू 100, मेरा परसेंटेज कंप्लीशन कितना निकला 20%। 35 लाख का मुझे कॉस्ट इनकर करना था, मैंने 7 लाख का कॉस्ट इनकर कर दिया, तो कितना परसेंटेज इनकर कर दिया है 20%। ये 20% को यहां पर अप्लाई कर दो, तो आप कितना रेवेन्यू बुक कर सकते हो 10 लाख। और सर एलिवेटर वो एडिशनल बुक कर दो 10 लाख, ठीक है। तो आप एडिशनल एलिवेटर का रेवेन्यू कब बुक करोगे, जब आप एलिवेटर्स को फिट कर दो, लेकिन तब तक आपको दोनों में एलिवेटर का कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना है, परसेंटेज कंप्लीशन में भी नहीं करना है, ट्रांजैक्शन प्राइस में भी नहीं करना है, यही बोला गया है यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्राइस 60, कॉस्ट ऑफ एलिवेटर 10, अदर कॉस्ट 7 लाख। तो मेजर ऑफ प्रोग्रेस कैसे किया, 7/35 20%। रेवेन्यू फॉर एलिवेटर इक्वल टू कॉस्ट इनकर्ड, जितना है उतना बुक कर देंगे। टोटल रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड 10 + 10 20। एलिवेटर अगर फिट हो गए तो 20 बुक करो, जब तक ना हो तब तक 10 ही करते रहना। देयरफॉर 31 मार्च 24 को आपको 20 बुक करना है। एलिवेटर का कॉस्ट टू कॉस्ट आपको बुक कर देना है, बाकी का आपको परसेंटेज कंप्लीशन के हिसाब से कर देना है। दिस एंड्स 8 केस स्टडीज। बहुत मजा है यार मेरे को केस स्टडीज में, 1 महीना लगा, 3-4 वीक लगे, लेकिन हो गया, ठीक है। अभी आई एम प्लानिंग केस स्टडीज ऑन पेपर 6F, वो देखते हैं कैसे कर पाते हैं। तब तक के लिए यार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, हर बार तो नहीं बोलूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, शेयर कर लेना, पसंद आए तो एक हाई ड्रॉप कर देना यार, अच्छा लगता है तुम लोगों से बात करके, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। थोड़ा बहुत आई विल स्टिल इम्प्रोवाइज ऑन द क्वालिटी, माइक का, कैमरा का, आई विल इम्प्रोवाइज। अगर उस एंड पे आपको थोड़ा बहुत कंफर्टेबल ना लगा हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी, करेंगे इस पे भी थोड़ा बहुत काम करेंगे, ठीक है। टेक केयर।